Greeting students. Now another video about the chapter fractions. In this video I have taken only a part of fraction where the addition and subtractions are being explained. So in another video I will be taking for multiplication and division, and then the whole chapter will be completed. I prefer to do it in two videos. So here, first of all, let's understand what fractions are. Fractions are a type of number where it is being separated with a line that is known as vernacular. A upon B, this upon, this vernacular, this bar is known as vernaculum. So A is our numerator and B is our denominator. You can see the examples over here. 3 upon 5, 17 upon 6, 8 upon 1. When there is no denominator, it is always considered to be the denominator as 1. And always remember, in fractions, A and B are always natural numbers. Only natural numbers. Fractions are always in natural numbers. Now, various type of fractions. Decimal fractions. Decimal fractions, denominator is 10, 100, 1000, etc. As you can see the example, 3 upon 10. So this 3 upon 10 will give you a number as 0.3 directly whenever it's divided. As soon as you see the number of zeros in denominator, you just put you just move the decimal that much number of places. So 3 upon 10, that is 0.3. 27 upon 100, that is 0.27. 31 upon 1000, so it is 0.031. So this is what decimal fractions are. Now vulgar fractions. Vulgar fractions are those fractions where you can have any other denominator but 10, 100,000 नहीं हो सकता. एक्सेप्ट 10, 100,000 के अलावा अगर कोई डिनोमिनेटर है तो वो हमारा वल्गर फ्रैक्शन कहलाता है. वल्गर फ्रैक्शंस में कोई भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन आ सकती है, जैसे इम्प्रॉपर, प्रॉपर, कोई भी. ठीक है. सो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस where the numerator is equals to or greater than denominator. Here I have not taken any example for equals to, but you can see the numerator is greater than denominator in 13 upon 9 or 43 upon 40. Okay. Now प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब फ्रैक्शंस, बेसिकली फ्रैक्शंस होते क्या हैं. अब ये जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन था ना, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्रॉपर एंड होल टर्म. इसके अंदर होल भी बहुत कुछ है और कुछ फ्रैक्शन का हिस्सा है. तो प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है कुछ हिस्सा, सिर्फ कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा किसी का नहीं. तो प्रॉपर फ्रैक्शंस में हमेशा न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर. ऑलवेज रिमेंबर, प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होता है और इम्प्रॉपर में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा या बराबर होता है. मिक्स्ड फ्रैक्शंस आर बेसिकली इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस जो होते हैं ना, उनको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होते हैं? अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ फ्रैक्शन. तो 3/4, अगर 13 upon 9 है उसको मुझे इम्प्रॉपर में मिक्स में कन्वर्ट करना होगा. इट विल बी समथिंग एल्स, बट राइट नाउ आई हैव अ मिक्स्ड फ्रैक्शन एज 1 3/4. इट इज प्रोनाउंस्ड एज 1 whole 3/4 in fraction. This is how it is pronounced, 1 whole 3/4 और 4 whole 5/7. सो 1 3/4 के लिए क्या हो गया? 1 इज अ होल नंबर, तो 1 + 3/4. Another one में 4 + 5/7. To convert the mixed fraction, there is another step. There are another methods to convert the mixed fraction into improper fraction. We'll learn them in our exercise. Let's move on to few more topics in the chapter. See, equivalent fractions. There are two more types of fractions. Equivalent fractions. Fractions obtained by multiplying or dividing the numerator and denominator by same number. अच्छा, अगर हमें फ्रैक्शन में कुछ चेंज करना है, हम अपनी मर्जी से अगर कोई चेंज करना चाहते हैं तो वो मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से ही चेंज होता है, पहली चीज़. दूसरी, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से चेंज तो करना ही है, बट जितना मल्टीप्लाई आपने न्यूमरेटर को किया है उतने को ही मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा. मतलब एक इस तरह से हो गया दैट वी आर 2 brothers और सिस्टर्स. न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों भाई बहन हैं, एंड जितना न्यूमरेटर को मिल रहा है उतना ही डिनोमिनेटर को भी मिलना चाहिए. मतलब न्यूमरेटर को अगर आपने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करो.
अगर न्यूमरेटर को आपने 2 से डिवाइड किया है तो डिनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करेंगे. दिस इज़ व्हाट इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आर नोन एज. ओके, सो एग्जाम्पल्स देखिए. मेरा सबसे पहला फ्रैक्शन है 3/4. तो ये बाकी जो नंबर्स लिखे हैं ना, मैंने फ्रैक्शंस लिखे ना, वो सारे उसके इक्विवेलेंट है. अब देखो 3/4 है तो 6/8. 6/8 को अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लाओगे ना तो वापस 3/4 होता है. स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कैंसिल करना. तो 3/4 को देखो, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 2 ज़ा 6, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ा 8, है ना. फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 9, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 12. इस तरीके से हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बनता है. नाउ लाइक फ्रैक्शंस, लास्ट पार्ट. सेम डिनोमिनेटर बट डिफरेंट न्यूमरेटर. ऑलवेज हैव द सेम डिनोमिनेटर. जिस भी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम है तो वो वाले फ्रैक्शंस क्या कहलाएंगे? लाइक फ्रैक्शंस कहलाएंगे. नाउ दिस स्मॉल पार्ट कंपेयरिंग फ्रैक्शंस आई हैव रिटन हियर. ये थोड़ा सा हेल्प रहेगा कि कब हमारा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होता है, कैसे पता चलेगा. देखिए, वेन एवर आई हैव 2 फ्रैक्शंस एंड आई नीड टू कंपेयर देम, सो जस्ट पुट देम. आप LHS RHS वाला साइड देखिएगा, ठीक है. तो LHS में मेरा लिखा हुआ है A/B इज ग्रेटर देन C/D व्हेन. कब? जब A इंटू डी करके और B इंटू C करके दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, और जब A और D का प्रोडक्ट बड़ा हो B और C के प्रोडक्ट से तो आपका A/B बड़ा होगा. अब यही चीज़ें बाकी कब कौन सी चीज़ बड़ी होगी वो आपको बताया है. A/B विल बी इक्वल्स टू C/D व्हेन the product of A and D and B and C will be equal. A/B will be smaller than C/D when the product of A into D will be smaller than product of B into C. So here these were the concepts of the chapter regarding the comparison, addition and everything. Few more concepts will be there. We'll take in another video, and let's move on to exercises where I have taken few questions regarding each and every concept of addition and subtraction. Okay, so let's start our exercise. Okay, now this is my exercise questions. I write my questions first because I select them and I write it in the notebook right now only, earlier only. So let's start the exercise. So you can see the compare the fractions. अभी हमने last topic यही किया था, compare the fractions. इसमें हमारा fraction है 5/8 and 7/12. To compare these, what do we do is 5/8, 7/12. You need to compare them. तो ये मेरा A और ये मेरा D था, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 5 into 12. ये मेरा B और ये मेरा C, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो. 8 into 7. 5/12 is 60. 8 into 7 is 56. Which is greater? 60 is greater. So that means A into D is greater. So therefore 5/8 will be greater than 7/12. मैंने आपको बताया था ना, A/B और C/D में A/ कब बड़ा होती है, पहला वाला नंबर कब बड़ा होता है? जब A into D is greater than C into B. Okay, so now let's arrange the question. Next question is of arranging in ascending order. Ascending is arranging in ascending means from smaller to bigger one. Okay, तो सबसे पहले अब हमें पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है. तो अब यहाँ पे 2 नंबर नहीं है कि कंपेयर करें हम. Now we have more than 2. So to compare all these 4, first step of our will be find the LCM of the denominators 4, 6, 9 and 12. So LCM of all these, let's find out. 4, 6, 9, 12. 2 2s are 4, 2 3s are 6, 9 जाता नहीं है, 2 6 are 12. 2 से वापस जाएगा, 2 1s are 2, 3 नहीं जाता, 9 नहीं जाता, 2 3s are 6. Now 3 की टेबल, 3 1, ये 1 नहीं है, 3 1s are 3, 3 3s are and 3 1s are. Again 3 सारे हो गए. So LCM is what? 2 2s are 4, 4 3s are 12, 12 3s are 32.
6. LCM कितना आया? 36. So let's convert all these denominators in the same denominators. So 3/4. 4 है मतलब ऑलरेडी इतना तो मेरे पास है, मुझे चाहिए कितना? इतना और चाहिए. So multiply कितना करेंगे? 9/9. Now I'll be converting all these fractions into their equivalent fractions. ठीक है. 3 9s are 27/4 9s are 36. आ गया ना डिनोमिनेटर 36. ऐसे ही सारे चेंज कर लीजिए. 5/6 इंटू, अब 6 था मतलब आई ऑलरेडी हैड दिस मच. हाउ मच आई नीडेड? 2/2 इंटू 3 और चाहिए था ना, इसीलिए 6 से मल्टीप्लाई किया. वैसे ही 7/9 मतलब आई एम हैविंग दिस मच. 9 मेरे पास है, कितना और चाहिए? 4 और चाहिए. तो 7 4s are 28/36. लास्ट वाला 11/12. तो देखिए 2 2s are 4 4 3s are 12 मतलब इतना मेरे पास ऑलरेडी है. कितना चाहिए? सिर्फ 3 और चाहिए. सो इंटू 3/3 33/36. सो नाउ मेरे पास नंबर है, फ्रैक्शंस है 27/36, 30/36, 28/36 and 33/36. सो अब असेंडिंग में करना है मतलब छोटे से बड़ा. तो सबसे पहले आ जाएगा 28/36 या 27, सॉरी, ओके. सबसे पहले आया 27, फिर आएगा 28, फिर आएगा 30, फिर लास्ट में 33. तो अब ये सब आ गए. तो अब इनके ओरिजिनल नंबर्स लिख लीजिए. 27/36 किसका था? 3/4. 28/36 was 7/9. 30/36 was 5/6. And last 33/36. Okay, let's take another question. In this question, this is a word problem now. Renu got 3/5 part of an apple, while Sonal get 4/5 part of it. मतलब एक एप्पल है, उसका 3/7 पार्ट रीनू को मिला, उसी एप्पल का 4/5 पार्ट सोनल को मिला. तो दोनों को कुछ कुछ हिस्सा ही मिला है, पूरा नहीं मिला है. तो किसको ज्यादा मिला है सबसे पहले तो वो कंपेयर करना है. तो ज्यादा मिला तो कंपैरिजन है, तो सॉल्यूशन लेते हैं हम. कंपैरिजन है तो 3/7 इज ग्रेटर और 4/5 इज ग्रेटर. कंपेयर करने के लिए हम क्या करते हैं? 3 into 5 and 7 into 4. So now multiply these two and see which one is greater. 3 into 5 is 15 and 7 into 4 is 28. So which one is greater? 28 is greater. So that means 3/7 is smaller than 4/5. That means 4/5 is greater. तो मतलब सोनल को 4/5 हिस्सा मिला था, सोनल गॉट द बिगर पार्ट. तो हमें ये मालूम चल गया, therefore सोनल गॉट दी लार्जर पार्ट. ठीक है. अच्छा, अब सोनल को तो मिला, पर कितना ज्यादा मिला? रीनू को भी कुछ तो मिला है, तो सोनल से कितना ज्यादा मिला है हमें वो पता लगाना है. तो पता लगाने के लिए हम डिफरेंस निकाल लेते हैं. सो लार्जर बाय हाउ मच? So 4/5 minus 3/7. As you can see, they are unlike fractions. Unlike fractions है तो denominators different है, तो denominators different है, तो let's make the denominators same by finding the LCM. LCM of 5 and 7 will be 35. तो 4/5 है तो 7 into 7 कर देते हैं, तो क्या डिनोमिनेटर 35 बन जाएगा. आया क्या? उसी तरीके से दूसरा वाला भी बनाओ. 3/7 into 5 into 5 आ गया. सो नाउ डिफरेंस फाइंड करना था.
सो 35 डिनोमिनेटर में आ गया. 35 डिवाइड बाय 5 इज 7. 7 4 जा 28. दिस होल पार्ट वॉज जस्ट फॉर योर एक्सप्लेनेशन. दिस पार्ट वॉज फॉर योर एक्सप्लेनेशन. फिर माइनस का साइन है बीच में यहाँ पे. फिर 35 डिवाइड बाय 7 इज 5. 5 3 जा 15. अंडरस्टूड. तो कितना आया? 28 माइनस 15 इज 8 में से 5 गया 3, 2 में से 1 गया 1. 13/35 हिस्सा सोनल को रीनू से ज्यादा मिला. Now next question is find the sum. So I have taken two different questions. First is 5/9 plus 3/9. As you can see they are like fractions. दोनों के denominators same है. तो denominators अगर same है तो हमें LCM लेने की जरूरत नहीं है. चलिए फर्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन करते हैं. 5/9 plus 3/9. As the denominators are same, so let's write them once. 5 plus 3 कितना आ गया? 8/9. तो ये मेरा एडिशन हो गया. लेट्स टेक दी सेकेंड वन. सेकेंड क्वेश्चन जहां पे है 8 3/4 प्लस 10 2/5. नाउ दे बोथ आर मिक्स्ड फ्रैक्शंस. मिक्स्ड फ्रैक्शन को सबसे पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज करना पड़ेगा. तो ध्यान रखिएगा डिनोमिनेटर्स विल ऑलवेज रिमेन सेम. अब इसका डिनोमिनेटर 4 है, इसका 5 है, तो ये दोनों ऐसे ही रहेंगे. तो अब इसको चेंज कैसे करते देखो. 8 4 जा 32. 32 प्लस 3 35. इसमें क्या किया देखो यहाँ पे होल नंबर इनटू डिनोमिनेटर प्लस न्यूमरेटर. ये आपका न्यूमरेटर बनेगा और फिर नीचे डिनोमिनेटर आ जाएगा. तो यहाँ पे 8 4 जा 32. 32 प्लस 3 35/4 प्लस सेम केस 10 5 जा 50. 50 प्लस 2 52/5. Now let's take the LCM of 4 and 5. 20. 20 divided by 4 5. 5 5 जा 25. 5 3 जा 15 16 17 plus 20 divided by 4 5 4. 4 2 जा 8. 4 5 जा 20. So denominator तो 20 था. 5 plus 8 13. Carry 1. 7 plus 1 8 plus 0 8. 2 plus 1 3. अब यहाँ मेरा नंबर आया है 383/20 जो कि एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है. तो आप देख सकते हो ना हियर न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर. तो क्या ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है? इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज करते हैं. इसको हम इस तरह में चेंज करते. कैसे करेंगे देखो. नाउ 383 डिवाइडेड बाय 20. तो 20 1 जा 20 माइनस करिए कैरी फॉरवर्ड 3. 20 की टेबल में 9 जा 29 जा 180 माइनस करिए डिनोमिनेटर बचा 3. अब 20 की टेबल में 3 तो आता नहीं है ना. तो अब मेरे पास ये तो डिनोमिनेटर था है ना. तो ये अभी भी डिनोमिनेटर में ही रहेगा. तो बचे अब ये दो, एक रिमाइंडर और एक रिमाइंडर एंड कोशेंट. सो कोशेंट कम्स हियर ऑलवेज एंड दिस कम्स रिमाइंडर. 19 into 20 विल गिव यू 380. 19 into 20 विल गिव यू 380. उसमें रिमाइंडर ऐड कर दीजिए 3. तो क्या हमारा नंबर बन जाएगा 383. सो टू कन्वर्ट improper fractions into mixed fractions, हमारा डिवाइड करने के बाद यहाँ पे आता है हमारा कोशेंट, यहाँ रिमाइंडर और यहाँ पे डिवाइजर. ठीक है, ध्यान रखिएगा. नाउ जैसे हमने एडिशन के क्वेश्चंस लिए थे वैसे ही सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चंस ले रहे हैं. तो देखो फर्स्ट वाला तो आसान है ही है, दोनों डिनोमिनेटर सेम है. तो 7 5 minus 2 दैट इज 3/7. ठीक है, तो इसको तो हम यहाँ पे ऐसे ही कर देते हैं. अब लेट्स कंटिन्यू विद दिस वन. तो अब यहाँ पे देखो 7 minus 4 2/3. तो सबसे पहले तो ये फ्रैक्शन नहीं है,
तो इसको फ्रैक्शन में लिखने के लिए क्या करते हैं हम, 7/1 माइनस, अब ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करेंगे तो 4 3 12, 12 प्लस 2 14/3। अब मेरे दोनों डिनोमिनेटर सेम नहीं है, 1 और 3 का एलसीएम लीजिए, 3 आ गया, 3 डिवाइडेड बाय 1 इज 3, 3 7 21 माइनस 3 डिवाइड बाय 3 इज 1, 1 इंटू 14 14, क्या आया 21 माइनस 14, 7/3। अब देख सकते हो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्यों है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन? बिकॉज न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो लेट्स डिवाइड, 7 डिवाइडेड बाय 3, 3 2 6, रिमाइंडर 1। तो मैंने कहा था कि रिमाइंडर तो मेरा 3 रहेगा क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर 3 है, तो कोशेंट आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ आ जाएगा रिमाइंडर, 2 3 6, 6 प्लस 1 7/3। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई में भी सबसे पहले स्टेप्स वही हैं, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में चेंज करिए, फिर डिनोमिनेटर्स को सेम करिए। तो हियर द क्वेश्चन विल बिकम 8/1 माइनस 4 2 8 प्लस 1 9/2 माइनस 2 4 8 प्लस 1 9/4। न्यूमरेटर सेम है नहीं है हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा डिनोमिनेटर से ही हमें लेना देना है। तो 1 2 और 4 तीनों का एलसीएम अगर आप लेंगे तो एलसीएम विल बी 4। 4 डिवाइडेड बाय 1 इज 4, 4 8 32 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 इज 2, 2 9 18 माइनस 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, 1 9 9। तो इसको सॉल्व करने के अलग अलग तरीके हैं। आप 32 में से पहले 18 माइनस कर दो, तो 32 माइनस 18 करेंगे तो इधर से आपने कैरी बोरो किया 4 और 1, तो आया 14 माइनस 9/4। तो 14 माइनस 9 इज 5/4। नहीं तो फिर आप ऐसे कर सकते हो, 32 को रहने दो, माइनस 18 माइनस 9, मतलब माइनस माइनस प्लस होता है, तो 18 प्लस 9 इज 27। तो ये हो गया 32 माइनस 27, मतलब दोनों माइनस के थे ना, माइनस का 18 था, माइनस का 9 था, तो 27 भी माइनस का आएगा। तो 32 माइनस 27 इज 5/4। नाउ 5/4 को मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करिए, 4 1 4, रिमाइंडर 1। सो हियर 1/4 will be your answer. Okay, now the next question here is another word problem. See, a question says that a rectangular sheet of paper is 15 3/4 centimeter long and 12.5 centimeter wide. So let's make a rectangular sheet for understanding that this is a paper in shape of rectangle whose length and breadth. Length is 15 3/4 centimeter and breadth is 12.5 centimeter. So as both length and breadth are in mixed fraction, so first step to let's convert the length and breadth in improper fraction. So length is 15 3/4, so it will become what, 15 4s are 60 plus 3, 63/4. Width, breadth are same, so 12.5 centimeter will become 12 2s are 24 plus 1, 25/2 centimeter. Now I have length and breadth both in improper fractions. Now it is saying find the perimeter. Perimeter of rectangle क्या होता है, 2l plus b. 2l was 63/4 plus 25/2. ब्रैकेट में एडिशन है, तो एडिशन के लिए देखिए डिनोमिनेटर सेम नहीं है, एलसीएम लीजिए, 4 और 2 का एलसीएम आएगा 4. 4 डिवाइड बाय 4 इज 1, 1 इंटू 63 इज 63 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 2 इंटू 25 इज 50.
2 into 50 plus 63 will give you 113 upon 4. 2 ones are 2 twos are 113 upon 2 centimeters. और अच्छा, अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, इम्प्रॉपर को करिए मिक्स फ्रैक्शन में. 2 5s are 10, 2 6s are 12, रिमाइंडर 1. कितना आया? 56 1/2 सेंटीमीटर्स. सो दिस वाज आवर पेरीमीटर. ध्यान रखिएगा, पेरीमीटर पूछा था इसीलिए 2l + b हमारा फॉर्मूला बना. एरिया नहीं पूछा था. एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शुड बी एडेड टू 7 3/5 टू गेट 18. इसमें मैं क्या ऐड करूं तो 18 बन जाए. तो जो मुझे ऐड करना है, लेट द नंबर बी x. मुझे जो ऐड करना है उसको x मान लेते हैं. तो मुझे किस में ऐड करना है? 7 3/5 प्लस x. इन दोनों को ऐड करने से मुझे 18 मिलना चाहिए. तो 18 इज अ होल नंबर. तो लेट्स मेक 18 अ फ्रैक्शन अपॉन 1. अच्छा, 7 3/5 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करिए. 7 5 35 प्लस 3 38/5 प्लस x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 1. अच्छा, अब ये भी एक नंबर है, ये भी एक नंबर है. इसको यहाँ से यहाँ शिफ्ट कर देते हैं. तो यहाँ एडिशन का है, वहाँ जाके सब्ट्रैक्ट करेगा. तो देखिए x इज इक्वल्स टू 18 अपॉन 1 माइनस 38 अपॉन 5. सब्ट्रैक्ट करिए. 5 divided by 1 is 5. 5 into 18 is 90. 5 divided by 5 is 1. 1 into 38 is 38. माइनस करिए. 10 में से 8 गया 2, 8 में से 3 गया 5. 52 upon 5. This is the number which is to be added in 7 3/5 to get 18. इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं. 52 upon 5. 5 ones are 5. सो अब ये रिमाइंडर नहीं है, इसलिए 5 zeros are 0 माइनस किया. अब ये 2 जो है ये रिमाइंडर है. तो 2 डिनोमिनेटर में 5. ओहो सॉरी, हमारा क्वेश्चन था 10. तो 10 5s are 50 प्लस 2 52/5. Okay. Now the last question of this video is a picture of 7 3/5 centimeter wide. हमारे पास एक पिक्चर है. सपोज करिए ये मेरा एक पिक्चर है, वाइड बोल रहा है. ये सपोज करिए दिस इज द width ऑफ माई पिक्चर 7 3/5 centimeter and I have to fit this picture in a frame. और वो फ्रेम जो है वो सपोज करिए इतना ही है ना. और फ्रेम का मुझे बोला है, फ्रेम की विड्थ बोली है 7 3/10. ठीक है. तो मतलब मुझे ये हिस्सा कट कराना पड़ेगा. तो ये कितना मेजरमेंट मैंने कट करके कम कर दिया, ये मुझे बताना है. ठीक है. तो देखो क्या 7 3/5 में से 7 3/10 माइनस कर दूंगी तो बचे हुए हिस्से मिल जाएंगे क्या मुझे. तो बस यही बोला है. तो सॉल्यूशन length should be trimmed. is equals to 7 3/5 बड़ा था, उसमें से इतना हिस्सा 7 3/10 माइनस कर दीजिए. तो हमारा बचा हुआ जो हिस्सा है वो हमारा ट्रिम्ड हिस्सा होगा. दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन से 7 5 35 प्लस 3 38/5 माइनस 73/10. एलसीएम लीजिए 10 डिवाइड बाय 5 इज 2 into 38 is 76.
10 divided by 10, 1 into 73, 73. 76 minus 73, 3 by 10 सेंटीमीटर. मतलब इतना इतना एरिया या इतना इतना लेंथ जो है मैं मेरी पिक्चर का कट कर दूंगी ताकि वो मेरे इस फ्रेम में एडजस्ट हो जाए. Okay, so in the next video I will be giving you about multiplication and division. So till here please practice more and more questions from the exercise. Thank you.